نکال دیا، کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر سوسائٹی کو، ہر گاؤں کو، ہر خاندان کو، ہر نوجوان کو آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ دلوں میں یہ بت جس کو ساری دنیا نے اس بت کو توڑ دیا، لیکن مسلمان نہیں توڑ سکے۔ بت کیا ہے کہ وہی دنیا داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کلھا متاع۔ یہ جو تجوریاں بنا رہے ہو، یہ بینک بیلنس کر رہے ہو، یہ زمینوں پر زمینیں خرید رہے ہو، یہ تم نے دولت کمانے کا ایک گھوڑ لگا رکھا ہے، کہا کہ یہ سب ایک چھوٹی سی پونجی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ کافرا شربۃ ماء۔ اس پوری دنیا کے ساری دولت، ساری منصب و جاہ اور کرسی، سب کچھ اکٹھا کی جائے، سب اول سے لے کر کے قیامت کے دن تک کی ساری پونجی، ساری دولت جمع کی جائے، کتنی بڑی دولت ہوگی، کتنے سونے ہوں گے۔ صرف قارون کے خزانے کیا تھے، قیصر و کسریٰ کے تاج کیسے تھے، اور قیامت تک کتنی دولت یہ زمین اگلے گی یا آسمان برسائے گا۔ یہ سب ملا کر کے یہ آسمان و زمین بھی آپ مالک ہو جائیں، چندریان پر نہیں، آپ سورج کو اپنے تلووں تلے رکھ دیں، یہ ساری دولت کتنی ہے؟ کلھا متاع۔ یہ بہت چھوٹی سی پونجی ہے، چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیکن اس میں سے اگر کوئی پونجی کچھ کسی لائق ہے تو وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ۔ گارجین سنیں، جوان اپنے دل میں بیٹھائیں اور سمجھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ کہ المرأۃ الصالحہ، یہ دنیا بہت حقیر چیز ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کو بھلا دینے والے، اللہ کے نظام کے خلاف کرنے والے، اللہ کی زمین پر چل کر کے اکڑنے والے، وہ اللہ جل شانہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، یہ ساری دنیا سسک سسک کے مر جاتی۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ سب کو دے رہا ہے، نیک کو بھی اور صالح اور طالح سب لوگوں کو، اس لیے کہ اس دنیا کے اللہ جل شانہ کے ہاں ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کسی کو نہیں۔ پوچھئے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کتنے لوگ جو نیک بیوی تلاش ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، آپ کو چاہیے دولت، آپ کو چاہیے بڑا خاندان، بڑی ناک، آپ کو چاہیے بہت زیادہ خوبصورت اور آپ کی نظر میں سگھڑ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، نیک عورت دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے۔ ذکر کے لائق اگر کوئی ہے تو نیک لڑکی ہے۔ لڑکے کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ لڑکا مت دیکھو کہ کتنا ہائی فائی ہے، کتنا لن فن والا ہے، کتنا کماتا ہے، کس خاندان کا ہے، بلکہ من ترضون دینہ، قرآن کا حافظ ہے، نمازی ہے، نیک ہے، اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، دنیا داری کے پیچھے وہ اپنے آپ کو نہیں بھگاتا۔ تو ایسا لڑکا کسی کو مل جائے خوش نصیب کو، فزوجوہ، تو شادی کر دو فوراً۔ وَإِلَّا تَكُنْ فِتْنَةٌ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا گھرانہ برباد ہو جائے گا، تمہارے بچے جو آنے والی نسلیں ہیں یا تو منقطع ہو جائیں گی، یا ایسی جس سے تمہاری نیک نامی جو کچھ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، بربادی کے راستے پر تم ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، سب کے سردار، اماموں کے سردار نہیں، امام الائمہ نہیں، امام الانبیاء، جو سارے انبیاء کے امام تھے، سید المرسلین، سارے نبیوں کے سردار تھے، اور اللہ جل شانہ نے آپ سے بڑا کسی کو نہیں بنایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
कअन्नक क़द ख़ुलिक़्त कमा तशाउ। अल्लाह जल्ल शानहू ने आपको वो मकाम अता फरमाया था, वो खूबसूरती अता फरमाई थी, वो आपको फसीहुल लिसान बनाया था कि कोई भी किसी दुनिया में किसी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा, आपसे अफजल नहीं देखा। रूए जमीन पर किसी माँ ने इस तरह के बड़े इंसान को पैदा नहीं किया। सबसे अफजल थे हमारे प्यारे नबी। हमारा ईमान है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, याद रखिए, इसको सुनिए जरा गौर से, ये पूरी कायनात जितनी है, जितनी मखलूकात हैं, अल्लाह ने जितनी चीजों को पैदा फरमाया है, उन सब में अफजल, उन सब की खूबियों को इकट्ठा करके अल्लाह जल्ल शानहू ने अंबिया किराम में रख दिया। नबियों से अब अफजल कोई नहीं है। दुनिया में कोई खूबी ढूंढनी है तो इन नबियों में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी नबी। लेकिन हमारा ये ईमान है कि इन सारी कायनात में, सारी मखलूक में सबसे अफजल अंबिया अलैहिस्सलाम, सारे नबी हैं, सब पर ईमान लाना फर्ज है। तो इन सारे नबियों में जितनी खूबियां हैं, उन सारी खूबियों के जामे कमालात आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे अफजल कोई नहीं है। और आप जो कुछ बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अगर बोलते तो आप क्या बोलते? सारी दुनिया के हकीम, सारी दुनिया के उलमा, सारे दुनिया के अच्छे और पाक दिल लोग जो अच्छी से अच्छी बात बोल सकते थे, जो इंसानियत के लिए मुफीद हो, सारे संसार के लिए बेहतर हो, तो हमारे प्यारे नबी अपने दिल और दिमाग से बोलते, अपनी जबान से उसको कहते, तो आपका दिल सबसे अच्छी बात कहलाता। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि नहीं, सारी मखलूक को मैंने पैदा किया है, सबको मैं जानता हूं, और आप मेरे रसूल हैं। आपका दिमाग मैंने सबसे बड़ा अता फरमाया, आपका दिल सबसे पाक और साफ और प्यारा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहेंगे, एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं कहेंगे। हम अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहते तो रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी बात कहते, सारी इंसानियत के लिए वो भली बात होती। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, आपकी ख्वाहिशात पाक हैं, आप किसी के खिलाफ कुछ दिल में रख करके बात नहीं करते हैं, आप सबकी भलाई चाहते हैं, आप सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन ये इख्तियार आपको भी नहीं है कि आप कोई अदना सी बात भी कहें, मगर वही बात आपको कहनी है जो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए से आपके दिल में डालते हैं, आपको सिखाते हैं। आप अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते। हम आप अपनी ख्वाहिश से बात करते, आप पर गुस्सा हो गए तो आपे से बाहर हो गए, आपसे हमारी दुश्मनी है तो हमने कुछ भी बोल दिया दिल में कुछ रख करके। लेकिन आप ऐसे इंसान थे कि नबी बनाए जाने से पहले भी सारी दुनिया सादिक व अमीन की गवाही देती थी। कुर्बान जाइए, आप सोचिए कर क्या रहे हैं। आप कहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, कोई कहता है कि हाँ हिंदुस्तान में दीन हमारा खतरे में है। दीन को अव्वले दिन से हमने खतरे में डाल दिया, हमने देश निकाला कर दिया उसे अपने घरों में। आप जा करके देखिए, तेरी सूरत देखकर दुनिया ने पहचानी नहीं। आप कौन हैं? दुनिया पहचान नहीं सकती कि हाँ ये ईमान वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये उस नबी की उम्मती हैं जो नबी सारी इंसानियत के लिए जीता था, सारी इंसानियत के लिए मरता था। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और मेरी इस तारीखी बस्ती के बासियों, मैं आपसे कहता हूं कि इस नुक्ते पर गौर करें कि अल्लाह जल्ल शानहू ने क्यों फरमाया कि मा यंतिकु, आप बोलते ही नहीं। जब कोई चीज बताई जाती है तब बोलते। आपका दीन अलग है, आपके खानदानी दीन पर आप चल रहे हैं तो आपने समझ लिया कि यही मेरे खानदान की रीत है। हमारे खास उलमा ने जो चीज बताई है वही दीन है। और कुरान आपके घरों में रखा हुआ है, कुरान के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार है, कोई उसकी तौहीन नहीं कर सकता। आप डेनमार्क में कहा कोई सरफिरा करता है, आप यहाँ सड़क जाम कर देते हैं। आपकी ईमानी गैरत जागती है। लेकिन कभी ये भी सोचा आपने कि आपकी ये बेटियां क्या हाफिजे कुरान बन सकी, क्या कुरान को समझ करके पढ़ सकी? खुद आपने 60 साल की जिंदगी में इसको कितना पढ़ा,
कितना उस पर अमल किया, अपने घर में कितना, उससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है, उससे ज्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है। आगे की बातें, उसके हुकूक जो है, उसके पर ईमान ला करके उसके पढ़ने का, उसको समझने का, उस पर अमल करने का, उस पर अपनी जान के खपा देने का कि इसको हर घर तक, हर जहर तक पहुंचाएंगे। ये फराइज तो अभी हमने सोचा ही नहीं। गांव के कुछ लोग कहीं से खड़े हो जाते हैं, कुछ जवान खड़े हो गए, कुछ बूढ़ों को हुआ कि अब तो लाचारगी का जमाना है, मर करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये जमीन तो मेरे साथ जानी नहीं है, ये घर, ये कोठी तो जानी नहीं है। आल औलाद भी जब सताया बुतों ने तो खुदा याद आया। अब औलाद भी देख रहे हैं कि जो मैं उमंगे थी वो तो पूरी नहीं हो रही है, क्या इसी के लिए मैं मरता हूँ। अब बकिया जिंदगी तो कम से कम दीन ईमान के रास्ते पर ले आऊं। तो कहता है कि तो अब कोई मकतब कायम होना चाहिए, कोई मदरसा जारी होना चाहिए। तो उस वक्त कुछ लोग खड़े होते हैं तो बकिया लोगों की बेतवज्जही होती है। क्या होगा ऐसी उम्मत का, ऐसी इंसानियत का, ऐसे लोगों का। आप इस पर गौर फरमाएं। मैं बारहा कहता हूं कि मुस्लिम पर्सन अल्लाह, लाख आपके उलमा चीखें, लाख चिल्लाएं, लाख जाके लाख कमीशन के सामने लड़ें, खास हुकूमत से हुकूमत को समझाएं, वो समझ में आने की चीज नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारे घरों में मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर अमल होने लगा, उस दिन देखिए कैसे होता है। अब एक नया कानून आने वाला है, अब पता नहीं उसको आना चाहिए कि, लेकिन आपका दिल तो यही कह रहा है कि कब आ जाए। हमको तो अमल करना नहीं, आए चाहे जाए। लड़की को लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान पढ़ा होता, ईमान होता, अल्लाह पर यकीन होता, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाप मर गया तो बेटी को 3 हिस्सा कर दो, एक बेटी है तो, और 1 रुपया दे दो उसको, 1 बीघा दे दो, 1 एकड़ जमीन उसकी हो गई, और बकिया 2 एकड़ जो है वो लड़के को दे दो। बस ये बताइए कि कितने लोग देते हैं। कल मैं कश्मीर में था, बड़ा मसला था, इस पर लोग अजीब तरह की बातें कर रहे थे। कहा कि मौलाना बाप बूढ़ा फतवा नहीं दे रहे हैं कि जिंदगी में मीरास तकसीम नहीं होती। अल्लाह ताला ने कहा कि जब मर जाए तो उसकी तकसीम ऐसे होगी। तो ये बताइए कि मरने के बाद तो कोई भाई नहीं दे रहा है, कोई भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है। तो मौलाना इतनी गुंजाइश तो निकालिए। आप लोग क्या करते हैं? ये जालिम बेटे बाप के मरते ही खुद तकसीम कर लेते हैं, बेटी का हिस्सा नहीं, अपनी बहनों का हिस्सा नहीं देते। तो कम से कम ये बेचारा मरते मरते कुछ तो बेटियों को देके चला जाए, तो क्यों नहीं गुंजाइश निकाल रहे? समझा कि नहीं समझा? क्यों? और जब हुकूमत हिंद ये कानून लाएगी या लाने को कह रही है कि नहीं, लड़का लड़की बराबर, लड़का लड़की बराबर, बिल्कुल बराबर सराबर। क्या कौम है भाई, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती। मैं 10 केस जानता हूं अपने इलाके का, हिंदू लॉ में कोई भी लड़की का कुछ नहीं होता था, इसलिए उन्होंने जो कुछ रुखसत कर रहे थे, विदा कर रहे थे, उसी वक्त कुछ दे ले लेते थे, जहेज के नाम पर, तिलक के नाम पर। लेकिन जब भारत का कानून बन गया कि नहीं, लड़की को भी मिलेगा और बराबर मिलेगा, मैंने दसियों बड़े खानदानों को देखा है, जमींदारों को भी देखा है, खास तौर पर गरीबों में तो मुझे उतना याद नहीं है, कम दर्जे के लोगों में, लेकिन बड़े लोगों में बड़ी आसानी से जाकर के देखता हूं कि वो कहते हैं कि ये मेरी बहन को मैं बुला दूंगा, ये जमीन आप लिखिए। मैं मदरसे की जमीन निकल रहा था, कहा कि मौलाना ये देखिए, ये जमीन मेरी नहीं है, हम लोगों को बज़ाहिर नजर आ रही है, आपने बाप दादा के मुझसे सुना और देखा होगा, लेकिन ये जमीन नहीं, मेरी बहन का हिस्सा है। और बहन को बुलवाया, लिखवाया उससे, और कहा कि पैसा इसका होगा। देखा आपने, ये कौम है। और आपको 2-3 हिस्सा करके 1 हिस्सा देना मुसलमान नहीं देते। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और यहां हो रहा है कि हमारे उलमा क्या लड़ेंगे, मुस्लिम पर्सन अल्लाह वाले क्या करेंगे, बड़े ढीले हैं, बाबरी मस्जिद ऐसे ही नहीं चली गई, फला हो गया। नहीं, हमने देखा है अयोध्या को, हमने देखा है मस्जिद के पास, इत्तेफाक से
ایک مرتبہ مولانا بھی تھے اور یہ مولانا جرجیسی مزید ہو گئے کہ بابری مسجد دیکھنی ہے، کم سے کم کہاں تھا یہ دیکھ لیتے ہم لوگ اجودھیا میں نے کہا موڑو گاڑی، ایک پنڈت جی کو بلایا میں نے کہا کہ پنڈت جی آپ آ جائیے، اور آج ہم کہا کہ مسلمانوں سے ہم بہت ناراض ہیں، ایک تو انہوں نے یہ مسجد تھی تو آباد نہیں کرتے تھے، اور بابری مسجد کے بالکل قریب ان کا مٹ کہا کہ آباد نہیں کرتے تھے، یہ مالدار اور ساہوکار جتنے تھے، یہ اللہ والے جن کی تجوریاں نہیں کھلتی تھی، کہا کہ یہ سب سے پہلے کسی نہ کسی بہانے سے ہم کوٹھی بنائیں گے، ہم شہر میں بسیں گے، کہا کہ